हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं राव नर्सिंग एकेडमी चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज एक स्पेशल मॉक टेस्ट बनाया दोस्तों सीएचओ एग्जाम के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले दोस्तों। क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगा मेरे को और 200 क्वेश्चन है टोटल, और इस वीडियो में 50 आने वाले हैं पार्ट फर्स्ट में। इसके बाद 3 पार्ट और आने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक सभी व्यूअर्स और सभी नर्सिंग साथियों, लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। 200 questions in community health nursing important for CHO aims. So let's start. First question: which is the most economical and best screening? Option A, mass screening. Option B, high risk screening. Option C, multiphasic screening. Option D, any of the above. Please guess answer, and the right answer is high risk screening. That is most economical and best screening. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स आर ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी येलो फीवर। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन आर ऑल एक्सेप्ट, तो प्लीज गैस करें आंसर, एंड द राइट आंसर इज मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ए लाइव वैक्सीन, immunoglobulins can be given after how much time period in a healthcare setting? Option A 1 week, option B 2 week, option C 10 week, option D 12 week। मतलब कि लाइव वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद इम्यूनोग्लोबिन कितने टाइम पीरियड के बाद दे सकते हैं, एक पीएचसी या सीएचसी में। प्लीज गैस करें आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आफ्टर 2 weeks after administering live vaccine, then after 2 weeks the immunoglobulin can be administered। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the screening strategy for prevention of blindness from diabetic retinopathy according to the NPCB involves option A opportunistic screening, option B high risk screening, option C mass screening, option D screening by primary health care। And the right answer is high risk screening, because diabetic retinopathy is a serious condition। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
vertical transmission is seen maximum in which of the following? Option A, herpes simplex. Option B, leprosy. Option C, tetanus. Option D, whooping cough. And the right answer is herpes. In herpes simplex, vertical transmission is seen maximally. दोस्तों एक बार अगेन रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर्स नया है चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लो और पास में लगी बेल आइकन को दबा लो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सको, कोई नई वीडियो मिस ना कर सको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी नाइस क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन कैन बी गिवन अगेंस्ट ऑल these disease except Option A, hepatitis. Option B, typhoid. Option C, mumps. Option D, hepatitis. तो आंसर एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन में पूछा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन गिवन ऑल ऑफ द डिजीज एक्सेप्ट पूछा था। हेपेटाइटिस दे सकते हैं दोस्तों, टाइफाइड भी दे सकते हैं, बट मम्प्स नहीं दे सकते। तो द राइट आंसर इज सी, मम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। The generation time is defined as generation time in the epidemiology is defined as the time interval between the marriage and birth of first child. Option B, the interval of time between the receipt of infection by host and maximum infectivity of host. Option C, the interval of time between primary case and secondary case. Option D, interval of time between invasion by infectious agent and appearance of first sign or symptom. So the right answer is B. So option B is the right answer. Option B is the right answer. The generation time is the time period between the entry of infection by host to maximum infectivity by the host or of the host. So B होगा right answer. Generation time होता है interval of time between the receipt of infection to maximum infectivity. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, the prognosis of a disease can be given by which of the following? Option A, secondary attack rate. Option B, incubation period. Option C, latency. Option D, serial interval. So prognosis can be assessed by or given by secondary attack rate. So option A is the right answer. ओके दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। भोपाल गैस ट्रेजेडी is an example of which of the following? Option A, point source epidemic. Option B, continuous epidemic. Option C, propagated epidemic. Option D, slow epidemic. So the right answer is option A. भोपाल गैस ट्रेजेडी is example of point source epidemic. दोस्तों थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द रिंग वैक्सीन is defined by which of the following statement? Option A, given by a ring shaped machine. Option B, given to produce a ring lesion. Option C, given around 100 yards of a case detected. Option D, given around a mile of a case. So the right answer is option C. Nice question, exam oriented. Ring vaccine is given or defined by given around 100 yard of a case detected. Next question, question number 12. The drug of choice for chemoprophylaxis in context of a patient of a pneumonic plague is option A, penicillin. Option B, rifampicin. Option C, erythromycin. Option D, tetracycline. So chemoprophylaxis ऑफ न्यूमोनिक प्लेग के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? टेट्रासाइक्लिन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी नाइस क्वेश्चन, एम्स पैटर्न क्वेश्चन। मास इम्यूनाइजेशन इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, लेप्रोसी। ऑप्शन बी, कॉलेरा। ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस। तो प्लीज गेस करें आंसर। एंड द राइट आंसर इज कॉलेरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एग्जाम बेस्ट जाए। आने वाले जो भी CHO एग्जाम है वो बेस्ट जाए और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ये मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों। सो क्वेश्चन है, हार्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, डिप्थीरिया। ऑप्शन बी, पोलियो। ऑप्शन सी, मीजल्स। ऑप्शन डी, टिटनेस। तो प्लीज गेस करें आंसर। एंड द राइट आंसर इज पोलियो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन is not included in EPI, expanded program of immunization schedule? Option A, BCG, सॉरी BOG है यहाँ, BCG हाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन बी, DPT। ऑप्शन सी, MMR। ऑप्शन डी, OPV। So BCG included in EPI, DPT also included, but MMR is not included in EPI। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना जरूर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब यूनिट ऑफ वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन कौन कौन सी है? मल्टीपल आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए, टाइफाइड वैक्सीन। ऑप्शन बी, H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ऑप्शन डी, डिप्थीरिया। ऑप्शन ई, न्यूमोकोकल। So the right answer is B, C, D. H influenza, hepatitis B and pneumococcal. 3 of them are subunit vaccine. दोस्तों remember,
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी, prevalence of cataract at one point of time can be determined by which of the following? Option A, longitudinal study. Option B, cross-sectional study. Option C, surveillance. Option D, cohort study. So prevalence of cataract को कौन सी टाइप की स्टडी करते हैं डिटरमाइन करने के लिए पर्टिकुलर टाइम में? So the right answer is option B. Cross-sectional study is the best method of study for prevalence at a given time. अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। In longitudinal studies, which of the following is true? Option A, easy to conduct. Option B, detect only one risk factor. Option C, determines incidence of disease. Option D, have increased bias. तो गैस करें आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट डिटरमाइंस इंसिडेंस ऑफ डिजीज। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार देने लायक क्वेश्चन दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी? सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी क्या होता है? एम्स टाइप पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों, दिखने में सिंपल है पर गलत होता है ऐसा ही क्वेश्चन। ऑप्शन ए हो गया क्रूड बर्थ रेट। ऑप्शन बी, केस फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन डी, स्पेसिफिक डेथ रेट। तो द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज क्रूड बर्थ रेट। रिमेंबर दोस्तों, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज क्रूड बर्थ रेट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। Very important question. Again, Ames pattern type question. Iceberg phenomena is not seen in which of the following? Option A, measles. Option B, none. Option C, polio. Option D, rubella. So guess करें आंसर, and the right answer is option A. मीजल नेवर फॉलोज आइसबर्ग फिनोमेना। और कौन कौन सी डिजीज है जो कि आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करती? तो कमेंट करें दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। रेबीज फॉलो नहीं करता, टिटनेस नहीं फॉलो करता, और इन्फ्लुएंजा फॉलो नहीं करता दोस्तों। रेबीज, टिटनेस, रूबेला, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये भी फॉलो नहीं करती। ऑप्शन चेंज भी हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस कंट्रोल स्टडी इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, कॉमन डिजीज। ऑप्शन बी, रेयर डिजीज। ऑप्शन सी, अनकॉमन डिजीज। ऑप्शन डी, अननोन डिजीज। So please guess करें आंसर, and the case control study is used for rare disease. Remember दोस्तों, very important point. Next, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने आप में, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। साइक्लिक ट्रेंड्स आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, रेबीज। ऑप्शन बी, मीजल्स। ऑप्शन सी, कॉलेरा। ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। So please guess answer, and the right answer is option B, measles. Cyclic trends are seen in measles. एक्चुअली क्या होता है कि ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड
सीजनल ट्रेल एक पर्टिकुलर सीजन में दिखाई देते हैं। साइक्लिकल जो चलता रहता है, साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम्स पैटर्न टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन हाउ मच टाइम? ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 3 आवर, ऑप्शन सी 6 आवर, ऑप्शन डी 12 आवर। तो प्लीज गैस करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन 1 आवर ओनली। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ट्रू रिगार्डिंग स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग इज ऑप्शन ए caused by eating of dairy products, option B caused by endotoxin, option C caused by feces, and option D associated with abnormal movement. So the right answer is, right answer बताएं दोस्तों। Right answer is option A, staphylococcal food poisoning is caused by eating of dairy products. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जाइएगा नहीं, बने रहेगा वीडियो लास्ट तक। क्वेश्चन तो अब दमदार आने वाले हैं, एक से एक क्वेश्चन जो कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि अब पैटर्न बढ़ता जा रहा है, खतरनाक वाला पैटर्न होता जा रहा है। क्वेश्चंस का घबराने का नहीं। राव नर्सिंग एकेडमी है ना दोस्तों। तो टाइफाइड क्वेश्चन है, टाइफाइड ओरल वैक्सीन इज गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन ए 1, 3 and 5 डे, ऑप्शन बी 1, 2, 3 डेज, ऑप्शन सी 1 to 4 days, option D 1, 7 and 14 days. So remember दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 and 3 and 5। टाइफाइड ओरल वैक्सीन देते हैं फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड फिफ्थ डे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन तो गलत हो गया दोस्तों, उम्मीद नहीं कर सकता आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो, लेकिन होता है, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज, ऑप्शन ए 5 to 7 days, ऑप्शन बी 7 to 10 days, ऑप्शन सी 10 to 14 days, ऑप्शन डी 15 to 30 days। तो प्लीज गैस करें। एंड द राइट आंसर इज 10 to 14 days। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है 10 से 14 दिन का, लेकिन फैल्सीपैरम का कौन बताएगा भैया? तो फैल्सीपैरम का याद रखना दोस्तों 30 डेज का होता है। बाय द वे पूछ भी ले तो 30 डेज का होता है इंक्यूबेशन पीरियड, और ओवेल का होता है 12 से 20 दिन का। ठीक है दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखिए। बाय द वे आ जाए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रेबीज इन एन इम्यूनाइज्ड पर्सन इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 days, ऑप्शन डी नन। एंड द राइट आंसर इज, दोस्तों इसमें दो आंसर हैं, मल्टीपल है, 4 ऑप्शन होने के बावजूद भी, तो 0 और 3 दोनों ही सही है। अगर ऑलरेडी इम्यूनाइज पर्सन है और उसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस करना है तो 0 and 3 days, 0 day and 3rd day दोनों को हो सकता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर इज, ऑप्शन ए
3 to 5 days, ऑप्शन बी 3 to 4 वीक, ऑप्शन सी 1 to 2 वीक, ऑप्शन डी 8 to 10 वीक। दोस्तों गैस करें और कमेंट करें तुरंत, अभी लाइव चल रहे हैं, देखते हैं कितने आंसर सही देते हैं। और राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपने सोचा है ऑप्शन ए तो एकदम सही हो। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी इज, ऑप्शन ए बर्थ इंजरी, ऑप्शन बी इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बर्थ एस्फाइक्सिया एंड ऑप्शन डी LBW, low birth weight. So the most common cause of perinatal mortality is, ऑप्शन देख लेते दोस्तों। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी होता है बर्थ एस्फेक्सिया। बर्थ एस्फेक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। Again very important, daily additional requirement of protein in lactating mother is, option A 25 gram, option B 15 gram, option C 35 gram, option D 50 gram and the right answer is option A 25 gram of additional requirement of protein is seen or needed in the lactating mother. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। वेरी इंपोर्टेंट एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन दोस्तों। डोज ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन विद माल न्यूट्रिशन इज, ऑप्शन ए 100 IU, ऑप्शन बी 200 IU, ऑप्शन सी 60,000 IU, ऑप्शन डी 1 lakh IU इंटरनेशनल यूनिट। सो गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाता, डोज ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन विद ओनली चिल्ड्रन पूछा जाता या इन्फेंट पूछ दिया जाता, तो यहाँ पे आंसर हो जाता, ऑप्शन नहीं दे रखा है, 400 आयु देते हैं इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर 1000 तक दे सकते हैं। रिमेंबर दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ऑप्शन ए अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ऑप्शन बी पेरिनेटल मोर्टेलिटी, ऑप्शन सी पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड ऑप्शन डी लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी। So the right answer is option B। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following is the most rare cause of maternal mortality? Very nice question, धमाकेदार क्वेश्चन दोस्तों। रेयर कॉज पूछा है, मोस्ट तो सब पूछते हैं, लेकिन रेयर कॉज पूछते हैं। यह नया पैटर्न शुरू करने वाला है एम्स। ऑप्शन ए अबॉर्शन, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी टॉक्सेमिया, ऑप्शन डी हेमरेज। सो मोस्ट रेयर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इज टॉक्सेमिया, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following is common to both acute and chronic malnutrition? Again एम्स पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो में एग्जिट ना करें, लास्ट तक बने रहें। आपके एग्जाम का सवाल है। ऑप्शन ए वेट फॉर एज
Option B, weight for height. Option C, height for age. And option D, BMI. तो इस क्वेश्चन को वही आंसर कर सकता है जो कि दोनों पैरामीटर जानता हो। एक्यूट माल न्यूट्रिशन और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में कौन कौन सी पैरामीटर यूज करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन पैरामीटर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाइट फॉर इज द मोस्ट कॉमन टू बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। Primary health care include all except option A, treatment is done by a doctor. Option B, equitable distribution. Option C, intersectoral coordination. Option D, appropriate technology. So the right answer except पूछा है, so treatment by doctor is answer. Option A is the right answer. Next question, very important question. ROM, reorientation of medical education scheme, was introduced consequent to the recommendation of which of the following. मतलब रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन कौन सी स्कीम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए, श्रीवास्तव कमेटी। ऑप्शन बी, चड्डा कमेटी। ऑप्शन सी, मुखर्जी कमेटी। ऑप्शन डी करतार सिंह कमेटी। So the right answer is option A is the right answer. The reorientation of medical education was given by the श्रीवास्तव कमेटी। रिमेंबर दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो और पास में लगी घंटी को भी दबा लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग was the first to promote and bring forward the primary health care concept in a true sense? कौन सी कमेटी ने फर्स्टली प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को एक ट्रू सेंस में लाया था? ऑप्शन ए, बोर कमेटी। ऑप्शन बी, अल्मा अटा डिक्लेरेशन। ऑप्शन सी, ग्लोबल फोरम फॉर पब्लिक हेल्थ। ऑप्शन डी, मुडेलियर कमेटी। सो राइट आंसर इज Alma Ata Declaration, which was given in 1978. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक से बढ़ के एक धमाकेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए। कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ क्लोरिनेशन इज ऑप्शन ए 1 hour, ऑप्शन बी 30 minutes, ऑप्शन सी 1.5 hour, ऑप्शन डी 2 hours। सो कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ क्लोरिनेशन क्या होता है? 1 hour। रिमेंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हर एग्जाम में पूछते हैं कि भाई किससे होता है, कौन सी डिजीज लाइस से होती है, कौन सी माइट से होती है, कौन सी सॉफ्ट टिक से होती है, कौन सी हार्ड टिक से होती है। लेकिन एम्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय लाइस? ऑप्शन ए, ट्रेंच फीवर। ऑप्शन बी, रिलैप्सिंग फीवर। ऑप्शन सी, क्यू फीवर। एंड ऑप्शन डी, एपिडेमिक टाइफस। So the right answer is option D, epidemic typhus, because it is caused by mite, not by the lice. And Q fever is caused by lice. Relapsing fever is by lice. And heart tick
कौन सी डिजीज कोज करता है? KFD, यह भी याद रखो, काइनेसिस फॉरेस्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर द डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन is due to formation of option A hypochloric acid only, option B hypochlorous acid only, and option C hypochloric acid and hypochlorite ion, option D hypochlorous acid and hypochlorite ions। so right answer हो जाएगा हाइपोक्लोराइड की डिसइंफेक्टिंग नेचर किसके कारण होती है? हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइड आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए डेथ per 1000 total birth, option B death per 1000 live birth, option C death per 10,000 total birth, option D death 10,000 live birth। so option B is the right answer। next question, पैप स्मीयर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज बी पैप स्मीयर इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ए कॉन्सेप्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? ऑप्शन ए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन डी प्राइमरी प्रिवेंशन। सो कॉन्सेप्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, तो समझ लेना यहां पे आने वाला है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अगर रिस्क फैक्टर को प्रिवेंशन कर रहे हैं तो याद रखना दोस्तों प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, all of the following next question, all of the following are method of health promotion except option A immunization, option B nutritional changes, option C behavioral changes, option D health education, and the right answer is immunization। immunization is the not method of health promotion। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। disability limitation is a part of which level of prevention? option A primary level, option B secondary level of prevention, option C tertiary level of prevention, ऑप्शन डी प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सॉरी नन। तो राइट आंसर हो जाएगा disability limitation is a part of tertiary level of prevention। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
Physical quality of life index include which of the following? Option A, IMR, literacy, life expectancy of at birth. Option B, IMR, literacy, life expectancy at 1 year. Option C, MMR, IMR and life expectancy. Option D, MMR, intake of calories per capita and IMR. तो गैस करें and the right answer is PQLI includes IMR, literacy and life expectancy at birth. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। आइसबर्ग फिनोमेना इज नॉट सीन इन ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी रूबेला। So the right answer is option A, iceberg phenomena is not seen in measles. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। True morbidity in a population can be calculated by which of the following? Option A, sentinel surveillance, option B, passive surveillance, option C, active surveillance, option D, monitoring. So please guess करें and the right answer is true morbidity in a population can be calculated by active surveillance. C is the right answer. So true morbidity in a population can be calculated by active surveillance. दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, बहुत अमेजिंग एमसीक्यू लेके आया हूं मैं। और सीएचओ तो आप यूं निकाल लोगे टिप्स में, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV prevalence can be assessed by which of the following? Option A, sentinel surveillance, option B, active pattern surveillance, option C, passive surveillance, option D, registered. So the right answer is sentinel surveillance. क्योंकि यहां पे प्रीवैलेंस के बारे में पूछा था। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट ऑर्डर बताना है। ऑप्शन ए डिजीज फर्स्ट, देन इम्पेयरमेंट, देन डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ऑप्शन बी डिजीज, disability, disability, impairment and handicap. Option C, impairment, disease, handicap and disability. So option A is the right answer. Next question, last question दोस्तों। ये आपको बताना दोस्तों, कोर्स ऑफ ए डिजीज प्रोसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, ऑप्शन बी एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी आइसबर्ग फिनोमेना। मतलब कि कोर्स ऑफ डिजीज विदाउट एनी इंटरवेंशन किस चीज की डेफिनेशन है दोस्तों? सोचे डीपली एक बार एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है और अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग
आज के लिए इतना ही रहे, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।